Good morning, students. Welcome to you in New Jyoti Academy online classes. Yesterday, we have learned chapter 18, a structure of Government of India and the Union Executive. Today, we are going to learn about the Union Legislature and the Judiciary Organization. Chapter 18, page number 128 and 129. ओके, तो कल हम लोग यूनियन एक्सिक्यूटिव के बारे में जान चुके थे. अब आगे हमें यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में जानना है, यानी संघीय विधान पालिका के बारे में. तो इसमें आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर के पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं. The legislative branch of the union government is called the parliament, which consists of the president, Lok Sabha, House of People, and Rajya Sabha, Council of States. राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के पार्लियामेंट यानी संसद का निर्माण करते हैं. First, we will learn about president. Making the president a part of parliament is in conformity with the principles and traditions of a parliamentary form of government. He addresses the parliament every year at the commencement of the first session and after each general election to the Lok Sabha. He summons the session of parliament and can dissolve the Lok Sabha on the advice of the Council of Ministers. He can also call a joint session of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. राष्ट्रपति को संसद का एक हिस्सा बनाना सरकार के संसदीय स्वरूप के सिद्धांत और परंपराओं के अनुरूप है. वह हर साल पहले सत्र की शुरुआत में और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद को संबोधित करते हैं. वह संसद के सत्र को बुलाता है, स्थगित भी कर सकता है, उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है. वह संसद के सत्र को बुलाना और मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग करने का उसे अधिकार है. उसे लोकसभा और राज्यसभा का वो ज्वाइंट सेशन भी बुलाने का अधिकार है, सत्र बुलाने का अधिकार है. नाउ लोकसभा, द लोकसभा is the people's representative body. It is also known as the House of the People or the lower house. The members of the Lok Sabha are directly elected by the people of India. The Lok Sabha can have a maximum of 552 members. The usual term of the Lok Sabha is 5 years. However, it can be dissolved earlier by the president. During an emergency, its term can be extended for a period of 1 year. लोक सभा जनता के प्रतिनिधि संस्था है. यह हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है और इसके सदस्य भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं. इसमें मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं. इसका कार्यकाल 5 सालों का होता है. यह समय से पहले भी भंग किया जा सकता है. आपातकाल के दरमियान में, इमरजेंसी के दरमियान इसकी अवधि को 1 साल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाई जा सकती है. नाउ राज्यसभा. द राज्यसभा is the upper house of the parliament. The Rajya Sabha cannot have more than 250 members, of which 12 are nominated by the president, and the remainder 238 are
representatives of the state and union territories elected by the method of indirect election. ये पार्लियामेंट का ऊपरी सदन माना जाता है। इसमें 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, बाकी 238 सदस्य राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज यानी संघ शासित प्रदेश द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। The Rajya Sabha is a permanent body. The members of the Rajya Sabha are elected for a term of 6 years, but 1/3 of its members retire on the expiry of every second year. It means that there is an election of 1/3 of the members of the Rajya Sabha at the beginning of every third year. राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों पर रिटायर होते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। Now function of parliament. Parliament is a law-making body. It makes laws on the subject mentioned in the union list and the concurrent list. An ordinary bill can be introduced in any of the two houses. Once a bill is passed by both the house, it is sent to the president for his assent, after which it becomes an act or a law. तो जैसा आपने जाना कि यह यानी पार्लियामेंट एक विधि निर्माण संस्था है, कानून बनाने की संस्था है। यह संघ सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों पर कानून बनाते हैं। साधारण विधेयक को दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले बार लाया जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, सिग्नेचर के लिए उसको भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। ये जनरल बिल की बात हुई। अगर मनी बिल की बात करेंगे तो मनी बिल को सबसे पहले लोकसभा में लाना पड़ता है। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा अगर उसमें कुछ त्रुटियां देखता है तो पुनः उसे वापस कर देता है लोकसभा के पास। लोकसभा फिर उसमें जरूरत समझी तो सुधार किया, अदरवाइज उसे फिर राज्यसभा के पास भेज देता है। राज्यसभा किसी भी बिल को ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक रोक सकती है, उसे कानून बनने से नहीं रोक सकती। अगर राज्यसभा ने पास करके उसे आगे बढ़ाया तो ठीक, अगर नहीं पास किया तो 14 दिन तक उसे अपने पास रोके रख सकता है और 14 दिनों के बाद वह स्वतः पास समझा जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर होते ही वह बिल कानून का रूप धारण कर लेता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर द जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स double system of executive and legislature at the union and state levels, but there is a single integrated system of courts for the union as well as the state. It administers both union and state laws, and at the head of the entire system is the Supreme Court of India. Below the Supreme Court stand the high courts of the different states. Under each high court there are subordinate courts. तो हमारा संविधान कार्यपालिका और विधान पालिका को संघ और राज्य जैसे दोहरे स्तर का प्रावधान करती है, लेकिन संघ और राज्यों के न्यायालयों की एक एकीकृत प्रणाली है।
यह संघ और राज्य दोनों कानून का प्रशासन करता है, चाहे संघीय कानून हो या राष्ट्रीय कानून हो, दोनों का प्रशासन करता है और पूरी व्यवस्था के मुखिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही है। ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्यों के हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय होते हैं और उच्च न्यायालय के नीचे, प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ जुडिशियरी। फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी इंक्लूड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन people and states, between states and between the union government and states. न्यायपालिका के कार्यों में लोगों और राज्यों के बीच का डिस्प्यूट, झगड़ा, मामला, राज्यों के बीच और केंद्र सरकार, सुप्रीम और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा इसमें शामिल है। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर को समझा और इसमें ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो रहा है और इसमें होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क है चैप्टर 18 पेज नंबर 131 ई शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस राइट इन द कॉपी। ओके, थैंक यू वेरी मच।